Hi friends, welcome to January 2021 review of my trades. So ये जो महीना रहा काफी अचरज भरा रहा. The results were discounted before the result day. आप देखा होगा जब इन्फोसिस का रिजल्ट आया, instead of market going up, instead of Infosys share going up, it actually came down. Similarly, it happened with other shares also. And thereafter, what happened? In this month, the FIAs who were very aggressively buying into Indian market, they started selling. And that was the signal that market will be quite volatile. And it happened exactly like that. My performance during the month, I could really achieve something when the market went down. Nifty resulted in a loss of 2.47% loss than the December closing. Lekin my trades did well. I got 14.55% return on my average capital. So I will discuss that. Before that, I would request you that please subscribe to my channel, like, share it. Also request you to retweet it if you so like. You can join me on my Twitter account and also my Telegram account. तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले we will discuss the closed trades and how my performance has been. Number 2, I will show you what are my open trade for the month of February that I am carrying over from January to February. Number 3, I will show you the challenges of few trades that I have taken in January and how they are in red today and what I can do. Then I will show you the challenges of February 2021. February 2021 में काफी challenges आने वाले हैं because some of the trades out of my open trades they are really bleeding red. How I am going to mitigate this loss and what I have already done it and what others can also replicate. चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस महीना का ट्रेड से. मेरे जितने ट्रेड हुए थे मैं उसको 5 स्लाइड बनाया हूं. देयर आर अबाउट 119 ट्रेड्स. तो हर एक स्लाइड में आई विल बी शोइंग यू 24 ट्रेड्स. तो 5 स्लाइड वो होगा, तो आप देखते जाइए. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. इफ यू कैन सी the profit from the futures has been excellent this month. Like the serial number 3, 57,750 from the future. Then serial number 11, 60,900 is the profit. Then serial number 13 from Bharti Airtel future, 50,902. So these are certain things which helped me coming into black at the end of the month. तो ये जो मैं एग्रेसिव फ्यूचर का अगेंस्ट में कॉल सेल किया था, ऑल दोज फ्यूचर्स दे परफॉर्म वेरी वेल. नाउ दिस इज द नंबर 2 स्लाइड. This is my number 3 slide of trades. The 4th slide, you can see here I have taken some protective puts in serial number 82 and 83 that I have closed at a loss of 16,425 and 13,432 respectively, because I thought the protective puts were taken at the level of 12,000, whereas market has gone up beyond 15,000. I said
I thought that it really not going to help me out, so I closed it so that I can take some protective puts near to the market spot position. And this is the fifth and the last slide of my trades. Now, please see the last column. जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं 45 ट्रेड मेरे लॉस में गए हैं अगेंस्ट माई 119 ट्रेड्स, जो कि दिखाता है मेरा जो ट्रेड हुआ था 119 में 45 लॉस, इट इज 62% इज द सक्सेस रेट. ये थोड़ा पिछले महीनों से नवंबर दिसंबर से थोड़ा कम है, बट because of the covered call against future on the first slide that I showed you, I ultimately made some profit. Now these are my open position which are being carried over to February 2021. So here you can see the purple colors are futures and the green colors are calls. The third and fourth, iBull Housing Finance and ICICI Bank, those are the only cash secured put. So this time I am carrying over very less open position to February. The reason is, well, the massive selling by the financial institution, and number two, a very big event is going to come on 1st of February, Monday को, the budget. So जब नर्वसनेस है, मैं कई सारे ट्रेड्स थोड़ा प्रॉफिट में या थोड़ा लॉस में मैं निकल गया, क्योंकि मैं अपना कैपिटल प्रिजर्व करना चाहता हूं. और जैसे कि बजट आ जाएगा तो आगे का ट्रेंड पता चलेगा आफ्टर द बजट, एंड देन आई विल टेक ए कॉल. तो मुझे नया ट्रेड क्या लेना है. सो आप देखे होंगे जब पिछले 2 दिनों से मैं एक भी नया ट्रेड कोई भी स्टॉक में नहीं लिया हूं. मैं इसीलिए नहीं लिया हूं जो कारण मैं बताया. मैं ये भी अपना जो टेलीग्राम है, जो मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैं लोगों को, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैं भी ये सुझाव दिया था कि डोंट एंटर इनटू एनी न्यू ट्रेड, न्यू पोजीशन क्रिएट मत कीजिए. ठीक है, तो वही मैं खुद किया. अब सोचते हैं कि जो प्रॉफिट होने के पीछे कारण क्या था. देखिए, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं, जब भी कभी आप शेयर चुनते हैं ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के लिए, तो पहला ध्यान आप चार्ट पे मत लीजिए. पहला ध्यान आपको किसी शेयर में आपको पसंद है बिकॉज ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, या कुछ लोग तो वैसे शेयर खरीदते हैं, छोटा छोटा शेयर जिसका लॉट बहुत ज्यादा है, सोचते हैं कि उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे कि नालको, जैसे कि कई सारे शेयर है. मैं ये नहीं बोलता कि ये खराब शेयर है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है उसी सेक्टर में बेस्ट शेयर पिक करने के लिए, तो व्हाई शुड यू गो टू द सेकंड. ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी में अगर आप चाहेंगे कि मैं रातों रात पैसा कमा लूं, तो मैं जानता हूं मेरे कई सारे दोस्त इसी टाइप के जो शेयर लिए थे, वेदर ओएनजीसी हो या पीएनबी हो या नालको हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, उसमें लाखों रुपया लॉस करके बैठे हैं. नोशनल लॉस है या एक्चुअल लॉस है, दैट आई डू नॉट नो, बट लाखों रुपया वो लोग खुद लिखे हैं कि उनको लॉस हुआ है. तो इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप अच्छा शेयर चूज करो. अगर इन द मनी हो गया तो फिर आप उसको बाय करोगे तो कम से कम आपको पछतावा नहीं होगा कि मैं कोई सेकंड ग्रेड शेयर ले लिया हूं. और दूसरी बात है, जो मैं शेयर्स के नाम लिया वो सब बीच बीच में सब हमेशा बैन पे आ जाते हैं, और जैसे ही बैन में आ जाते हैं तब कितना बड़ा मुश्किल होता है, कितना लिक्विडिटी का इश्यू होता है. जो लोग लिए हैं वो लोग खुद जानते हैं. तो लिक्विडिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी ट्रेड्स. तो अगर कोई भी शेयर आप चुनते हो, आप हमेशा ये देखा कीजिए भाई इसका लिक्विडिटी कैसा है. और कभी कभी हम ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं जहां की लिक्विडिटी बहुत कम होता है. मान लीजिए एक शेयर है माइंड ट्री, उसका अगर 1600 है, 1700 है, 1620 है, 1640, आप देखेंगे 1600 1700 का
काफी सारे आपको बढ़िया लिक्विडिटी मिलेगा, लेकिन 1620 1640 में शायद ना हो सके। सिमिलरली एमजीएल में भी यही हालत होता है। एमजीएल में आप अगर देखें कि 1000 का जो पुट है या 1100 का जो कॉल है, 2000 क्वाइट लिक्विड, वेर एज उनका अगर आप 1120 बस 20 रुपीज कमाने के उस चक्कर में जाएंगे तो आपको लगेगा, देखिए आप देखिएगा, जब इवन इफ यू आर एक उसी ट्रेड में आप सेल कर चुके हैं, जब आप स्क्वायर अप करने जाओगे आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट रीजन आप ये भी चेक कीजिए आप जो स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं वो कितना लिक्विड है। दैट इज अवेलेबल फ्रॉम एनएससी का जो ऑप्शन चेन है, वहां आपको मिल जाएगा जो ट्रेड आप ले रहे हो उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं। तो ये ध्यान दीजिए वाला चीज, इसीलिए मैं आपको बीच में मेरा जो असली मुद्दा है वहां से हटकर ये चीज मैं आपको बताया। सो प्लीज रिमेंबर लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन व्हील ट्रेड। अब मैं आपको 4 ट्रेड दिखा रहा हूं। ये स्लाइड देखिए, मेरे ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें देखिए जो मेरा आरबीएल बैंक है, जो कि सच बोला जाए कि इट इज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट। आरबीएल बैंक कभी भी मेरा ट्रेड में नहीं था, मैं थोड़ा बहकावे में आ गया। और होता है, हर एक ट्रेडर हर एक इन्वेस्टर ऐसा करते हैं और मैं अपना गलती मानता हूं। और इसमें मेरा 1,72,260 रुपया का नोशनल लॉस हो गया है। यद्यपि आई हैव गॉट टाइम, मैं जो लॉस दिखा रहा हूं मैं 29 तारीख यानी कल का जो रेट था उस रेट को आपको दिखा रहा हूं। सिमिलरली मेरा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 210 में ऑलरेडी 47,895 नोशनल लॉस हो चुका है। मारुति फ्यूचर में भी मेरा नोशनल लॉस हो चुका है 77,160 बिग अमाउंट। और एक बिग अमाउंट है डीवीज फ्यूचर। आपको याद होगा 2 दिन पहले जो मैं वीडियो निकाला था इसमें मैं कुछ एडजस्टमेंट किया था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो फ्यूचर है जो उसको कैरी फॉरवर्ड किया था, रोल ओवर किया था जो फ्यूचर, उसमें भी लॉस है 29,300। बट ये चारों शेयर को मैं एक्सेप्ट आरबीएल बैंक 3 शेयर को मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। आरबीएल बैंक के बारे में मैं आपको आगे का पिक्चर में मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं क्या किया हूं एंड हाउ आई एम गोइंग टू एड्रेस टू दिस बिग लॉस। ऑफ कोर्स ये जो दिखा रहा है 1,72,000, इसमें से मैं ऑलरेडी जनवरी में 31,000 प्रॉफिट ले चुका हूं बाय सेलिंग कॉल्स। तो मेरा एक्चुअली देखा जाए तो 1,40,000 के करीब ये लॉस है, यद्यपि मैं दिखा रहा हूं पूरा अमाउंट यहां। तो बाकी जो 1,40,000 रहा तो उसको मैं कैसा मैनेज करूंगा मैं आगे दिखा रहा हूं आपको। मैं कई बार बोला हूं और मैं एक वीडियो भी बनाया था कि हमेशा जब आप देखते हो कि मार्केट फॉल करने वाला है, पता चलता है, थोड़े बहुत जानकारी मिल ही जाता है, तो आप कुछ प्रोटेक्टिव पुट खरीद कर रखिए। और एक फायदा मैं ये भी हूं, मैं एक एक करके आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। यहां मेरा 4 ट्रेड है। पहला वाला लाइन में देखिए आरबीएल बैंक में मैं कल 12 रुपया में एक पुट बाय कर चुका हूं। तो इसका मतलब है कि जो 215 का जो मेरा पुट है इससे नीचे अगर मार्केट गया, जो कि ऑलरेडी 212 हो चुका है, तो 215 के नीचे जाने से मेरा मैक्सिमम लॉस विल बी प्रोटेक्टेड अप टू 2015 और ये 12 रुपया का भी घाटा होने वाला है। लेकिन इसको कैसे मैनेज करूंगा? ये जो लॉस आरबीएल फ्यूचर में हुआ है उसके लिए मुझे कल एक बहुत अच्छा मौका मिला। आप जानते हैं बिकॉज ऑफ द बजट जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है वो काफी बढ़ चुका है आईवी। तो मुझे 33, ये देखिए सेकंड वाला 4 फरवरी का ट्रेड है, 33,500 का जो कॉल है मुझे एक बढ़िया प्राइस जो 3,000 पॉइंट ऊपर है, जो आप देखिए जो टॉप लाइन में मैं निफ्टी का मैं दिया हूं 13,634 और बैंक निफ्टी का 30,565, तो 3,000 पॉइंट ऊपर है। और मैं जानता हूं माई ट्रेड हियर इज क्वाइट सेफ, अगर दुनिया में कुछ भी हो सकता है मैं जानता हूं, लेकिन 3,000 पॉइंट अगले गुरुवार तक, थर्सडे तक आई एम नॉट गोइंग टू सी बैंक निफ्टी गोइंग अप बाई 3,000 पॉइंट। बट पता नहीं बजट में ऐसा कुछ मैजिक हो जाए कि आ जाए, बट फिर भी मैं उसको स्टॉप लॉस लगा के रखा हूं। बट
अगर 33,500 नहीं होता है बाय थर्सडे, तब आई विल गेट ए प्रॉफिट ऑफ 4890 मल्टीप्लाइड बाय 900, जो 900 यूनिट है, तो 44,000 यहां मैं प्रॉफिट ले लूंगा। तो मेरा जो आरबीएल में जो लॉस हुआ है, तो उसमें ये 44,000 कुछ मुझे सहूलियत देंगे। ऑफ कोर्स द कॉल इज देयर, वो कॉल का भी प्रॉफिट मुझे मिलेगा। और देखते हैं और क्या आगे मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। इसके अलावा मैं कुछ प्रोटेक्टिव पुट भी लिया हूं, मैं निफ्टी में भी लिया हूं और बैंक निफ्टी में भी लिया हूं। आप देखिए मेरा जो थर्ड रो है, थर्ड रो में यह है कि निफ्टी 14,500 का जो पुट है, मैं उसको बाय किया हूं 254.70, जो कि आज निफ्टी 13,634 हो गया। सो आई एम रियली इन ए वेरी गुड प्रॉफिट देयर। लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए ये प्रोटेक्टिव पुट लिया नहीं हूं, मैं अपना जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो को बचाने के लिए लिया हूं। तो आप देखिए इसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन वैल्यू विल बी 14,500, उसमें मल्टीप्लाइड बाय 300 जो मेरे यूनिट है, तो मेरा 43,50,000 का मैं प्रोटेक्शन लिया हूं निफ्टी में। सिमिलरली इन बैंक निफ्टी मैं 31,200 का पुट बाय किया हूं, जबकि अब है बैंक निफ्टी 30,565, तो इसमें भी मैं प्लस में आ गया हूं। मुझे इस पुट का प्रोटेक्टिव पुट बाय करने का फायदा ऑलरेडी मिल चुका है। तो एंड यहां मेरे बैंक निफ्टी का जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन वैल्यू है 31,200 का पुट का मतलब 31,200 मेरा लॉट, सॉरी मैंने 100 दिखाया, एक्चुअली ये 50 है, मैं लॉट 100 नहीं है, माफ कीजिए 50 है। तो इसमें मेरे को 15,60,000 तक का बैंक निफ्टी में मुझे प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो ये रहा कि अगर आप कभी ट्रेड कैरी ओवर करते हो, अगर आपको लगता है तो प्रोटेक्टिव पुट का फायदा कैसा होता है। और जब हाई आईवी रहते हैं तो ऊपर में निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में फायदा होता है। तो बैंक निफ्टी का काफी ऊपर में अगर आप कॉल सेल करते हो, और अगर यू आर एक्सपीरियंस्ड डेरिवेटिव ट्रेडर, न्यूबी के लिए नहीं है, अगर आप नौकरी करते हो या कुछ और करते हो, इट शुड बी मुश्किल। ये जो फुल टाइम ट्रेडर है ये करते हैं। और जो मैं तो दिग्गजों को देखता हूं, वो तो मैं तो सिर्फ इतना किया हूं, लेकिन वो लोग तो काफी बढ़िया करते हैं। दे आर ब्रिलियंट पीपल, दे डू वेरी वेल। बट बस बिकॉज मेरा कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट रहता है, तो मैं काफी सारा ऊपर मैं उसको कॉल सेल करता हूं बैंक निफ्टी में। नॉर्मली ये एवरी थर्सडे मैं करता हूं, बट इस बार टिपिकल सिचुएशन, मुझे एक मौका मिल गया, तो मैं बैंक निफ्टी का 3,000 ऊपर में मैं इसका कॉल सेल किया था। तो दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आप सबको, फरवरी थोड़ा डेंजर दिख रहा है, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि फरवरी में भी अच्छा होगा, बजट अच्छा होगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा। यही सोच रखते हुए आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।